Good morning, everyone. In previous class, we have studied about energy density and intensity of electromagnetic waves. We have seen that energy is carried by electric and magnetic variations or in the form of electric and magnetic fields. All right. So in that case, we have seen that energy is equally distributed. Energy density is equal in electric and magnetic fields, and we have seen the expression for energy density also. All right. Today we are going to see that electromagnetic waves carry momentum also. All right. So what is the momentum in an EM wave? See, an electromagnetic wave transports linear momentum as it travels through space. If an electromagnetic wave transfers a total energy, if I say capital U, to a surface in time small t, then total linear momentum delivered to the surface will be the total energy divided by c. C is what? The speed through which the electromagnetic wave is moving. See here, the definition is, if an electromagnetic wave transfers total energy U, capital U, to a surface, it is total energy, to a surface in time small t, then total linear momentum delivered to the surface will be T is equals to, this is the expression, means EM wave carries momentum. EM wave, when hits any surface or hits any medium, it transfers some मोमेंटम टू दैट सरफेस और दैट मीडियम. और ऐसा ही नहीं है कि वो मीडियम हो सकता है वो मीडियम की बाउंड्री हो, ठीक है ना, जहाँ कहीं पे दो मीडियम मिल रहे हो. और मीडियम का मतलब देखिए, मीडियम का मतलब पार्टिकल ही होना ज़रूरी नहीं होता है, वो एक वैक्यूम भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ कोई मीडियम नहीं है. इसका मतलब वो एक मीडियम की प्रॉपर्टी है कि वहाँ पे किसी भी तरह के पार्टिकल्स कुछ भी नहीं. ऑलराइट, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वन डायरेक्शन. अगर यहाँ से मान लीजिए जा रही है और कहीं एक मीडियम बाउंड्री है, वहाँ से कोई एक जनरल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, कोई भी एक जनरल वेव किसी बाउंड्री से यानी मीडियम बाउंड्री से टकरा के कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है, कुछ ट्रांसमिट होता है. तो अगर मान लीजिए कोई ईएम वेव है, वो अगर किसी सरफेस से या किसी मीडियम से टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो मोमेंटम होगा वो पूरी तरह से अपोजिट हो जाएगा. देन टोटल मोमेंटम विल बी, if I say this electromagnetic wave, if EM wave is totally reflected, then momentum delivered will be how much? This P and minus, यानी चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, वही मोमेंटम डिलीवर्ड होगा. मान लीजिए पी मोमेंटम इधर गया, यहाँ पे उसका जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वेव का वो ठीक इतना ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी माइनस पी हो गया. देन टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, यहाँ इस डायरेक्शन में अपोजिट रिफ्लेक्ट हो गई है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इनिशियल माइनस फाइनल पी माइनस ऑफ माइनस पी, सो इट इज 2p. सो वी कैन से द मोमेंटम डिलीवर्ड बाय दिस EM वेव, momentum delivered will be how much? Will be 2u by c. It is twice of this. It is u is total energy, 2u by c, because the momentum of wave will change from p to minus p. So we have got one information that electromagnetic wave carries momentum. All right. और इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर भी अप्लाई करती है. ऑलराइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अप्लाइज प्रेशर ऑल्सो, मीन्स व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल्स ऑन एनी सरफेस इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस. ठीक है, वो सरफेस हमारा अर्थ का कोई सरफेस हो सकता है, हमारी बॉडी का कोई सरफेस, या कोई भी एक सरफेस जिस पे EM वेव फॉल कर रही है. So we will now calculate the pressure exerted by the EM wave on the surface, on any surface. So see, what is the definition? When an electromagnetic wave falls on a surface, it exerts pressure on the surface. This pressure is called radiation pressure.
So radiation pressure is very important. It is somewhat different from that normal pressure. It is actually depends upon the intensity. That is why it is different. जैसे प्रेशर क्या होता है जनरल भाषा में, मैकेनिक्स में फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि फोर्स और एरिया यहाँ कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रही है, यहाँ वो इंटेंसिटी कैरी करते हुए चल रही है, एनर्जी कैरी करते हुए चल रही है। इंटेंसिटी आप फिर से देखेंगे, इंटेंसिटी क्या है, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन याद रखिए। तो एनर्जी, ये प्रेशर जो है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इसको क्या कहते हैं, रेडिएशन प्रेशर। सो रेडिएशन प्रेशर depends upon intensity of the wave. So it is P, if I say PR, then it is I by C. Alright. तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि चाहे प्रेशर हो या जो आपका अभी आपने पीछे मोमेंटम देखा, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी ये जो प्रेशर है और ये जो मोमेंटम है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द मीडियम थ्रू विच दिस वेव इज ट्रेवलिंग। अगर वैक्यूम है देन वी विल यूज C, अगर कोई मीडियम है देन वी विल यूज एनी अदर वेलोसिटी और स्पीड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। So this is all about some properties, we can say some additional properties जो कि हम इसमें निकालते हैं कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना। अब हम आएंगे कि EM वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। वो सारी चीज़ें जो हमने इसके बारे में थ्योरेटिकली पढ़ी है, अब उसको हम कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम्स में EM वेव से रिलेटेड या तो हमें ये पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी रेंज क्या होगी। जैसे एक्स रेज हैं, उसकी जो रेंज होती है उसके वेवलेंथ की या उसकी फ्रिक्वेंसी की वो क्या होगी, या उसका यूज़, गामा रेज का कहाँ से ओरिजिन है, कैसे पैदा करते हैं गामा रेज को। इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। लेकिन एक क्वेश्चन और पॉपुलरली पूछा जाता है, दैट इज व्हाट राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देन यू हैव टू नो व्हाट यू हैव टू राइट इन द एग्जाम। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें उसकी प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करनी है। देखिए सभी कुछ हमको इसमें ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुका है, पता है। तो वन बाय वन हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते चलेंगे और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक हिंट वाइज लिखते चलेंगे, बाकी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सी फर्स्ट वन इज the electromagnetic waves are produced by accelerated charges. This we have discussed multiple times. EM waves are produced by accelerated charge, ठीक है। हो सकता है वो चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा हो सकता है वो तेजी से मूव कर रहा हो, एक्सेलरेशन हो रहा हो। They do not require any material medium for propagation. तो हम क्या लिखेंगे, produced by accelerated charge. All right, now this one is first and second one, you also know that it does not require any material medium, हो या ना हो it does not matter, क्योंकि वो वैक्यूम में भी चल सकती है, किसी मीडियम में भी चल सकती है। Now next is you have also studied about the structure of the EM wave. The electric and magnetic fields are oscillating in perpendicular direction to each other as well as to the propagation of the wave. So we can say EM waves are transverse in nature. यही तो होती है ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी। EM waves are transverse in nature. वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। थर्ड वन, हमने इसको देखा भी है प्रूफ में, तो ये सभी को पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्स होने के लिए बेसिक प्रॉपर्टी है E and B should be perpendicular to each other as well as they should be perpendicular to the direction of propagation of the wave. Now next is the oscillation of E and B fields are in same phase. Very important. मतलब क्या है, जब हमने वेव बनाया तो मैं ऐसा कुछ बनाता था कि साथ साथ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है, ये
इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन z डायरेक्शन में। जहाँ पे ये मिनिमम हो रहा है वहाँ पे ही ये भी मिनिमम, और जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम। सो द electric and magnetic vectors are actually oscillating with same phase. E vector and B vector are oscillating in same phase. All right, now for this, all EM waves travel in free space in this with this same speed. फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस कह लें या वैक्यूम कह लें ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि एयर में और वैक्यूम में बहुत ऑलमोस्ट हम लोग इक्वलिटी लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है उसके परमिटिविटी और परमेबिलिटी में। तो फ्री स्पेस कह लें, तो फ्री स्पेस में इन फ्री स्पेस स्पीड इज व्हाट, c is equals to 1 by root over of mu naught epsilon naught। हमने इसको देखा भी है, ये कितनी आती है। Alright, now fifth property, the amplitude ratio, amplitude ratio means E naught upon B naught। कितना होता था, E naught is equals to C B naught, मैंने प्रूफ करके दिखाया था प्रीवियस क्लास में। सो इट इज इक्वल्स टू C, इट इज अ कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। अच्छा, अगर स्पीड ये हम किसी मीडियम की बात करते हैं तो क्या चेंज आ जाता है इसमें, किसी मीडियम के लिए हम उसका नाम दे देते V और वो जाता रूट ओवर ऑफ म्यू एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि ये परमिबिलिटी ऑफ मीडियम है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये चेंज आ जाता है। ये फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं या मीडियम की। यहाँ देखिए ये वैल्यू है, एम्पलीट्यूड हमेशा, एम्पलीट्यूड रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। सो द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर अ कांस्टेंट। ऑलराइट, नाउ ये हमने प्रॉपर्टी प्रूफ किया था पिछली क्लास में इक्वेशंस का यूज करके। सिक्स्थ, हाउ मच एनर्जी डज इट कैरीज, हमने देखा था एनर्जी डेंसिटी। We can say EM waves carry energy as they travel through space, and this energy is shared equally by EM, electric and magnetic field। हमने दिखाया था कि E और UB energy carried by the electric field and carried by the magnetic field is same, है ना, और उन दोनों का डबल हो गया था टोटल एनर्जी। सो U is equals to एनर्जी डेंसिटी, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी थी ऑफ EM wave is how much, U is equals to U electric field and U यानी magnetic, ये energy density carried by the electric field and energy density carried by the magnetic field। So it is total energy carried by the energy density, total energy density it is equals to how much। अगर हम इसमें अलग अलग लिखें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर एंड इट इज 1/2 अपॉन म्यू नॉट, मतलब 1/2 म्यू नॉट डिनोमिनेटर में, एंड इट इज बी नॉट स्क्वायर। ये पीक वैल्यू के फॉर्म में है, बी नॉट और डी नॉट के फॉर्म में, हमने ERMS और BRMS के फॉर्म में भी पढ़ रखा है। नाउ all things are combining together, this makes this properties। so ट्रांसपोर्टेड लीनियर मोमेंटम, कितना लीनियर मोमेंटम ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब कहने का है कि प्रॉपर्टी एक ये भी है कि EM वेव्स मोमेंटम कैरी करती है ना, जबकि EM वेव्स में यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स केवल वाइब्रेट कर रहे हैं, जो EM वेव पैदा कर रहे हैं, कोई मास नहीं मूव कर रहा है, बट इट इज कैरिंग द मोमेंटम। और ये असर हमें कहाँ दिख रहा है, P इज इक्वल्स टू U/C, ठीक है, ये हो गया। एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या EM वेव चार्ज है, नहीं। क्या EM वेव में कोई चार्ज मूव कर रहा है, बिल्कुल नहीं मूव कर रहा है, ओनली एनर्जी इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
so it will not be affected by the electric and magnetic fields. All right, so EM waves are not deflected by electric or magnetic fields. All right, now next is they obey the principle of superposition. Obviously waves हैं, wave superposition principle को follow करती हैं, and it will also follow show the reflection, refraction, polarization, diffraction, interference, all type of wave phenomena. देखिए यही तो प्रॉपर्टी है कि EM वेव्स जो होती हैं वो वेव नेचर शो कर रही हैं, तभी उसको वेव कहा जा रहा है। वेव नेचर शो करने के लिए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और ये सारे फिनोमेनास जो होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसको फॉलो करना चाहिए और ये सारे फिनोमेनास को शो करती हैं। वन मोर थिंग, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑप्टिकल इफेक्ट्स बिकॉज E नॉट इज मच ग्रेटर देन B नॉट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जब पोलराइजेशन पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये जो जितने भी ऑप्टिकल फिनोमेना हैं, ऑप्टिकल फिनोमेना कौन कौन से, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, हो सकता है इसके बारे में अभी आपने ना सुना हो, आप 12th क्लास में ही ऑप्टिक्स पढ़ते वक्त सुनेंगे, एंड रिफ्लेक्शन ये तो सुना ही होगा, रिफ्रैक्शन, ये सारे ही फिनोमेना ऑप्टिकल फिनोमेना है ना, लाइट के ऑप्टिकल फिनोमेना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो EM वेव है ये सारे फिनोमेना किसके कारण शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण शो करने का ये मतलब है कि इन सारे फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पीक वैल्यू ऑफ E नॉट इज मच ग्रेटर देन पीक वैल्यू ऑफ B नॉट। इस केस में जो चार्ज के वाइब्रेशंस के कारण यानी एक्सेलरेटेड चार्ज के कारण जो फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमा, मतलब E नॉट यानी पीक वैल्यू। और इस वजह से ये जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जितनी भी हैं ये सभी इलेक्ट्रिक वेक्टर के कारण ही शो होती हैं। इसके बारे में और भी चीज़ें जब पढ़ाई जाएंगी, पोलराइजेशन, तो मैं वहाँ डिस्कस करूँगा कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड ही ले रहे हैं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए अभी आप इतना जानिए कि इसकी पीक वैल्यू ज़्यादा होती है B नॉट से, इस वजह से ऐसा करना होता है। ऑलराइट, नाउ these are some properties and these were the characteristics, that is energy density and momentum and pressure, all these things. So now we are going to study the electromagnetic spectrum. We have studied about electromagnetic waves. अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने तरह की होती हैं। यह असल में ये पूरी कॉम्बिनेशन है बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से, उसके बाद हम एक एनिमेशन देखेंगे जिसमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस्ड है, फिर हम अपने थ्योरी पार्ट में आएंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अकॉर्डेंस विद देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, दोनों ही इन अकॉर्डेंस विद देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, दोनों के ही किसी के भी एक ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे आपको पता है कि एक्स रे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रे होती हैं, इंफ्रारेड आर वेरी लेस एनर्जेटिक रेज, ठीक है। एक्स रेज हमको नुकसान पहुंचाती हैं, यूवी रेज हमको नुकसान पहुंचाती हैं, इंफ्रारेड हमारे आसपास बहुत ज़्यादा होती हैं और हमको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, बिकॉज दे हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कैरीड बाई देम और एनर्जी डेंसिटी कैरीड बाई देम। So what are the basic difference? They have difference in their frequencies. X-rays have higher frequency and that is why they are carrying higher energy. So let's watch this video to understanding
the electromagnetic spectrum, and then we will come to the classification of this EM waves. Alright, watch this video. What is it? Electromagnetic radiation. These waves spread across a spectrum from very short gamma rays to X-rays, ultraviolet rays, visible light waves, even longer infrared waves, microwaves, to radio waves which can measure longer than a mountain range. This spectrum is the foundation of the information age and of our modern world. Your radio, remote control, text message, television, microwave oven, even a doctor's X-ray, all depend on waves within the electromagnetic spectrum. Electromagnetic waves, or EM waves, are similar to ocean waves in that both are energy waves. They transmit energy. EM waves are produced by the vibration of charged particles and have electrical and magnetic properties. But unlike ocean waves that require water, EM waves travel through the vacuum of space at the constant speed of light. EM waves have crests and troughs like ocean waves. The distance between crests is the wavelength. While some EM wavelengths are very long and are measured in meters, many are tiny and are measured in billionths of a meter, nanometers. The number of these crests that pass a given point within 1 second is described as the frequency of the wave. One wave, or cycle, per second is called a hertz. Long EM waves, such as radio waves, have the lowest frequency and carry less energy. Adding energy increases the frequency of the wave and makes the wavelength shorter. Gamma rays are the shortest, highest energy waves in the spectrum. So, as you sit watching TV, not only are there visible light waves from the TV striking your eyes, but also radio waves transmitting from a nearby station, and microwaves carrying cell phone calls and text messages, and waves from your neighbor's Wi-Fi, and GPS units in the cars driving by. There is a chaos of waves from all across the spectrum passing through your room right now. With all these waves around you, how can you possibly watch your TV show? Similar to tuning a radio to a specific radio station, our eyes are tuned to a specific region of the EM spectrum and can detect energy with wavelengths from 400 to 700 nanometers, the visible light region of the spectrum. Objects appear to have color because EM waves interact with their molecules. Some wavelengths in the visible spectrum are reflected, and other wavelengths are absorbed. This leaf looks green because EM waves interact with the chlorophyll molecules. Waves between 492 and 577 nanometers in length are reflected, and our eye interprets this as the leaf being green. Our eyes see the leaf as green, but cannot tell us anything about how the leaf reflects ultraviolet, microwave, or infrared waves. To learn more about the world around us, scientists and engineers have devised ways to enable us to see beyond that sliver of the EM spectrum called visible light. Data from multiple wavelengths help scientists study all kinds of amazing phenomena on Earth, from seasonal change to specific habitats. Everything around us emits, reflects, and absorbs EM radiation differently based on its composition. A graph showing these interactions across a region of the EM spectrum is called a spectral signature. Characteristic patterns, like fingerprints within the spectra, allow astronomers to identify an object's chemical composition and to determine such physical properties as temperature and density. NASA's Spitzer Space Telescope observed the presence of water and organic molecules in a galaxy 3.2 billion light-years away. Viewing our Sun in multiple wavelengths with the SOHO satellite allows scientists to study and understand sunspots that are associated with solar flares and eruptions harmful to satellites, astronauts, and communications here on Earth. We are constantly learning more about our world and universe by taking advantage of the unique information contained in the different waves across the EM spectrum. As you have seen the video, now we'll come to the classifications of electromagnetic spectrum, and I am not discussing here
about the frequency ranges just because these are the part of theory, you will see it. I am only discussing the source from which all these waves are generated. So first is radio waves. See, I am writing only the sources, बाकी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, वो रेंजेस हैं, वो ऑर्डर आपको कुछ कुछ अपने दिमाग में बैठाने पड़ेंगे. जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी कैरिंग ज़्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी कम. तो देखिए सोर्सेस क्या हैं. एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स और ऑक्सीलेटिंग सर्किट्स. क्योंकि इसकी देखिए वेवलेंथ ज़्यादा होती है सर्किट्स और इसकी एनर्जी कम होती है, तो ये चूंकि एनर्जी कम कंटेन कर रही है, रेडियो वेव्स हमारे नॉर्मल रेडियो ट्रांसमिशन में यूज़ होती है. मार्कोनी ने इसको सबसे फर्स्ट टाइम में डिस्कवर किया था. ऑलराइट, तो और इसका पहली बार ट्रांसमिशन भी इसके थ्रू किया था. ठीक है, तो ये रेडियो वेव्स का सोर्स हो गया. इसकी एनर्जी कम होती है, इससे कुछ ज़्यादा एनर्जी लिए हुए होती है माइक्रोवेव्स. ऑलराइट, इसकी 10⁹ हर्ट्ज टू 10⁻12 हर्ट्ज के अराउंड होती है एनर्जी. यहाँ देखिए क्या है, ऑक्सीलेटिंग करेंट्स इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक क्लिस्ट्रॉन्स. सोर्सेज क्या क्या होते हैं, क्लिस्ट्रॉन एक तरह का जैसे साइक्लोट्रॉन आपने पढ़ा है, वैसे ही एक वैक्यूम ट्यूब होता था जिसमें करंट ऑक्सीलेट कर रही होती थी. वैक्यूम ट्यूब, उसमें ये बहुत पहले यूज़ किया जाता था, आज के टाइम में उसको नहीं यूज़ करते हैं. इसी तरह एक पॉपुलर है गन डायोड. जो लोग आगे की क्लासेस में इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उनको सबसे पहले गन डायोड्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है. इसमें मैग्नेट्रॉन्स भी यूज़ होते हैं. माइक्रोवेव्स आर एक्चुअली यूज्ड इन माइक्रोवेव जनरेशन. तो अब ये कहाँ पे है, देखिए इसमें हमारी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, बहुत छोटी भी नहीं होती है. इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁹ हर्ट्ज टू 10⁻12 हर्ट्ज के अराउंड में होती है. ठीक है, ये एक सिग्नल बीम की तरह यूज़ किया जाता था. जैसे अब घरों में जो माइक्रोवेव अवन्स होते हैं, ये आपने सुना ही होगा, है ना. माइक्रोवेव थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रेडियोथेरेपी होती है, उसी तरह से अलग अलग एनर्जी लेवल्स की वेव्स का यूज़ करते हैं. सिमिलरली अब देखिए और क्या है, नेक्स्ट इज इंफ्रारेड वेव्स. ठीक है, इंफ्रारेड का ओरिजिन देख लेते हैं क्या है. इंफ्रारेड वेव्स के बारे में आपने तो सुना ही होगा, है ना. सिक्योरिटी सेंसर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, सी कोई भी हॉट बॉडी या मॉलिक्यूल्स जब गर्म करते हैं, यानी कुछ ऐसे स्पेशल एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको गर्म करने पे इंफ्रारेड निकलती है, तो हॉट बॉडीज से निकलती है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर एनर्जी रेंज में. ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ 10⁻11 हर्ट्ज टू 10⁻14 हर्ट्ज रेंज की होती है. ये हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, आप उसमें देख सकते हैं. विजिबल लाइट, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा सभी लोग जानते हैं. इट इज़ जनरेटेड बाय इनकैंडेसेंट लैम्प. एक्साइटेड एटम करते क्या हैं, जब मॉलिक्यूल किसी एटम में, है ना, जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, चाहे उसको वाइब्रेट करें चाहे उसको वोल्टेज प्रोवाइड करें, तो उसके जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बाहर निकलते हैं, है ना, आयनाइज होके, और यही क्या जनरेट करते हैं, लाइट पल्सेस जनरेट करते हैं, जिसके कारण विजिबल लाइट निकलती है. तो हम कह सकते हैं कि रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम्स और आयनाइजेशन. सिमिलरली अल्ट्रावायलेट रेस के लिए हाई वोल्टेज पे यही काम होता है. हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब्स. ऑलराइट, और सन भी इसका बहुत बड़ा सोर्स है, ये तो सभी जानते हैं.
ऑलराइट, यानी यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। नाउ कम टू एक्स रेज। एक्स रेज आर एक्चुअली जनरेटेड बाई सडन डीएक्सेलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत तेज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनको जब हम किसी टारगेट पे हिट कराते हैं, मान लीजिए जैसे गोल्ड फॉइल टारगेट है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत तेज़ी से बहुत हाई स्पीड में जब हिट करते हैं, तब यहाँ पे टारगेट पे ये जब टकराते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप के टारगेट होते हैं, जैसे गोल्ड फॉइल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो एक्स रेज होती हैं। सिमिलरली एक और वो है टाइप है गामा रेस, जिसके बारे में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इट इज़ एक्चुअली जनरेटेड नेचुरली थ्रू न्यूक्लियर डीके, और यू कैन से जैसे एग्जाम्पल है यूरेनियम या कोबाल्ट हो गया, इस तरह के मटेरियल से ये नेचुरली निकलती रहती है, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। इट कैरीज अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट हैज़ frequency in the range of 10.20 hertz around, all right, so these are the waves। हमें सोर्सेज एग्जाम में पूछते हैं, और बाकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस याद होनी चाहिए या वेवलेंथ रेंजेस भी एक रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सारी बातें थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और उनके टाइप्स की, ठीक है। तो आप इसके सोर्सेज को रिवाइज करिए, इसको प्रॉपरली ऐसे याद करिए कि आप इसकी रेंज को याद रख पाएँ। ऑलराइट, थैंक यू।